Dear children, today we are going to read about a chapter from mathematics of class 5. So, here a shape is given on this page to tell you something about this shape. Okay, so first of all you should see this shape that is going to be drawn on this page. Okay, so children, you know this shape is called the a square. Okay, this shape is called the a square. ये square है, and you know about the square, all the sides there are 4 sides in a square and all of them are equal. Okay, and the corners makes the angle 90 degree and all these angles are equal to each other. So you can say in a square all 4 sides are equal and all angles are equal to each other, and the sum of all angles will be 360 degree. Okay, so you can say that we are going to read about the square, and this is the chapter 3 of class 5 from the subject mathematics. Okay, so just see the chapter that I am going to teach you completely today. So how many squares? Okay, this is the chapter 3, how many squares. Here the grids are given, here the grids is given here to draw the square, and the measurement of the length and breadth of each square is 1 centimeter. You can see here that this is the, now take the pencil, this is the square, 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 or you can color it. Okay, so these all are the squares, or if you will color this, then if anyone asks you that how many squares are colored here, okay, so you can see, so you can tell 1 2 3 4 5 6 7. okay, out of many, यानी कितना है इसमें, then you can say that है ना 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 grids, given here, 15. Okay, 15. And how many rows are there? 1 2 3 4 5 6. So there are 90 squares. Okay, there are 90 squares. So the area of this square grid is the 90 square centimeter. Okay, because why? Because this is the 1 centimeter, this is the 1 centimeter, so the area of this square will be 1 centimeter square, and each colored grid will show you the 1 centimeter square. Then the area of this grid will be 90. Why? There are a row is consist of 15 square grids. So each row has 15 and each column has 6. So you should multiply to find the area of this square grid. 6 into 5, 15 into 6. How many? So 19 centimeter square is the area of this square grid. Okay. So measure now it is here given that measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. Okay, so you can do it yourself, खुद करोगे इसको. ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे each rectangle is made out of 12 equal squares. इसमें 12 equal squares यहाँ पे कलर किया गया है. बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. अब इसकी बाउंड्री क्या होगी?
द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो जस्ट यहाँ पे पहले देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ ले चल के दिखाता हूँ कि पेरीमीटर किसको कहेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है ना। ये देख लीजिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब मैं पेरीमीटर दिखाने के लिए दूसरा कलर लेता हूँ मैं आपके सामने। ये ऑल द बाउंड्री कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसका जो लेंथ होगा, ऑल द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, the sum of the length of the all boundaries is called the perimeter। अब मान लिया जाए यह 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है। इट इज़ ऑल्सो द 10 सेंटीमीटर, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर। पेरीमीटर अब इसकी नेमिंग हम कर देते हैं A B C D। तो पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, so it will be the 40 सेंटीमीटर and unit of perimeter will be सेंटीमीटर। वाई मैंने बताया है पहले, पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर सभी सेंटीमीटर में है और प्लस अगर ये प्लस हो रहा है, देन इट विल बी द यूनिट इन सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में प्लस होता तो मीटर ही होता। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, इसको ये बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। नाउ कम टू द चैप्टर। अब चैप्टर पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका किया जा रहा है। अब मेजर स्टाम्प्स, अब यहाँ पर स्टाम्प्स दिया हुआ है। ये सारे स्टाम्प्स जो हैं वो पोस्टल डिपार्टमेंट, भारत के, इंडिया के जो पोस्टल डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको इश्यू करते हैं, है ना। ऑल दिस स्टाम्प्स आर इश्यूड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज द पोस्टल डिपार्टमेंट। तो द पोस्टल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द लेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स। ओके, ये पहले लेटर आते थे, चिट्ठियाँ आती थी। जैसे कहीं दूर दूर पर लोग रहते थे तो वो भेजते थे अपने माता पिता के यहाँ चिट्ठियाँ, अपने पेरेंट्स के यहाँ चिट्ठियाँ भेजते थे। अगर कोई बच्चे कहीं किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना, इफ़ द चिल्ड्रेन वेयर लिविंग इन अ हॉस्टल, देन ही और शी कुड सेंड लेटर्स टू हिज पेरेंट्स। वो अपने मदर फादर के पास लिखते थे लेटर। मैंने कहा जैसा कि ये जो सारे स्टाम्प हैं वो पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से जारी किए जाते हैं। ये चिट्ठियों में लगा होता है, कहीं कहीं इनवेलप्स में दिखता है ये, है ना। समवेयर इनवेलप्स आर, समवेयर स्टाम्प्स आर फाउंड ऑन द इनवेलप्स, यू कैन सी। और गवर्नमेंट लेटर्स ऑलवेज सेंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूजिंग दिस स्टैम्प्स। इन स्टैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं, एंड दीज ऑल स्टाम्प्स आर गिवन हेयर ऑन अ स्क्वायर ग्रिड इन विच यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच स्टाम्प। ओके, सो you will have to do this all the exercises self। ओके, खुद करना है आपको। फिर भी मैं एक दो यहाँ पे बताता हूँ कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज अ स्टाम्प कवर। ये स्टाम्प जो ए में जो दिया गया उसको देखो पहले, ये ए में दिया गया है। अब इसमें देखिए कि कितने सेंटीमीटर में ये कवर कर रहा है। तो ये हो गया क्या, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, कितना है कि रोज 1 2 3 कितना हो जाएगा 6। इधर 6 हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टाम्प कवर। तो 6 3 18 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 18
स्क्वायर 18 जो 1 सेंटीमीटर मिलाकर हो जाता है, एंड स्टाम्प बी कितने का हो जाता है? तो स्टाम्प बी 1 2 3 4, जैसे ये 1 2 3 4 1 2, ठीक है। तो इतना 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। तो ऐसे करेंगे। अच्छा अभी ये पूछ रहा है कि विच स्टाम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, कौन सा स्टाम्प में सबसे ज़्यादा एरिया है? तब एरिया कैलकुलेट कीजिए। इसका एरिया निकालेंगे तो 18 आएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो 8 आएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4, ये इसका आएगा 12, इसका आएगा 4, इसका कितना आएगा? ये इसका भी आएगा 12, सॉरी हाँ ना 12 ही आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? स्टाम्प पे का है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अगले चैप्टर पे, अगले पेज पे। गेस करना है विच हैज़ द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और पेज ऑफ दिस बुक। अब ये कहा जा रहा है क्या कि आपका फुटप्रिंट का ज़्यादा एरिया होता है या फिर आपके पेज का। तो आप अगर आपके पैर छोटे हैं, इफ़ योर अगर आपका जो फुटप्रिंट इफ़ योर फुटप्रिंट इज स्मॉलर दैन योर द लेंथ ऑफ द बुक, then you can say that the area of footprint is less than the area of the page, okay। तो ये है। अब ये इसमें पूछा जा रहा है 2 5 रुपीज़ नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट। कहता है 2 5 रुपये के नोट हो जाएं, 2 5 रुपीज़ के नोट्स हो जाएं, तो और 100 रुपीज़ से बड़े होंगे कि छोटे होंगे एरिया में। तो आप इसको कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप देखिए, घर पे देकर देखिएगा कि क्या होता है इसमें। All these exercises I have to do yourself, आपको खुद से ये सब करना होगा और ये सब करना होगा। How big is my hand, कितने मेरे हाथ बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अपने कॉपी पे यानी अपने पेज पे हाथ रखिए और देखिए कि वो कितने स्क्वायर ग्रिड बनाइए। स्क्वायर ग्रिड कैसे बनाएंगे? तो मैं स्क्वायर ग्रिड बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। मैं चलता हूँ, मैं आपको उधर स्क्वायर ग्रिड बताता हूँ कैसे बनता है इसको। तो आप देखिए कैसे बनेगा। आप क्या करें, एक पेज लें, बिल्कुल प्लेन पेज लें। प्लेन पेज पे क्या करें, प्लेन पेज पे आपका जो छोटा स्केल होता है उस पर 15 सेंटीमीटर बने होते हैं। तो मान के चलें कि अगर बड़ा पेज है तो उस पर 15 सेंटीमीटर आसानी से आ सकता है, अगर छोटा होगा तो कम आएगा। तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ 15 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करें, एक सीधी सी लाइन लें। सबसे पहले एक सीधी से पहले ये लाइन ले लें 15 सेंटीमीटर का। आप इसको डॉट कर दें 1 सेंटीमीटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 ये जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, 15 हो गया, फिर एक और लाइन लिया। सॉरी लाइन सीधी नहीं है, फिर भी आप घबराएं नहीं। ये फिर यहाँ से भी कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, ये 15 हो जाएगा। अब ऐसे ही फिर लेकर के और फिर ऐसे ही लाइन मैच कर दें, यानी सारी चीज़ हो गई। अब ये मिला दें, इसे जहाँ जहाँ आप ले रहे हैं ये मिला दें, या डॉट डॉट से भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना होगा करेंगे आप। ये मिला करके देखिए ये आपका बन जाएगा। क्या यहाँ देखिए, मेरे वाले पे मत जाइएगा क्योंकि मैं आपको हाथ से करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है ना। देयर आर slanting lines also, so don't be bothered, don't get confused that this is the square grid or not। आप जब आप करेंगे, खींचेंगे तो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। जैसे ये खींचने के बाद 1 1 1 दिखे, ठीक है। तो आप ऐसे खींच लेंगे तो 15 15 का बना लेंगे और उसके बाद इस पर रखेंगे हाथ। आप इस पर जो हाथ रखेंगे तब आपको दिखेगा कि क्या सही है कि गलत है। अब हाथ आपने रखा, अब आप देखिए, मैं दूसरे कलर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मान लीजिए हाथ रखा किसी ने और ये ऐसे है, ठीक है। फिर ये यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ पर ऐसे है। सॉरी 5 तो नहीं होगा, ये 5 मैंने अंगूठा भी वही यहीं पे बना दिया, बनना नहीं चाहिए था, सॉरी। मैं फिर भी बनाता हूँ, फिर दोबारा मैं बना रहा हूँ, है ना।
ये यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। मैं फिर से बनाता हूँ। जैसे मान लिया हाथ है, छोटा सा ये उंगली हो गई, ये और फिर ये अंगूठा है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब आप देखिए कितना एरिया में ये है ना। तो आप इससे एरिया निकाल सकते हैं। जैसे जहाँ पे है ये थोड़ा सा आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, तो आप इसी के हिसाब से करेंगे। आइए कैलकुलेट करके इसका देखेंगे कि कितने एरिया में ये आता है। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द सही, व्हाट विल बी द राइट एरिया। तो इन तरीक़ों से अब देखिए यहाँ पे डी का, देखिए डी में क्या है, ब्लू शेप में दिया गया। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो दिया गया है, इस स्क्वायर को देखिए, ये वाला ये स्क्वायर दिया हुआ। अब इसी को एक पार्ट को इधर रख दिया गया। हाँ, इस शेप में दिखा, क्या एरिया डिफरेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जितना एरिया था इसका उतना ही एरिया इसका भी होगा। अब शेप सिर्फ चेंज हो गया। ये पहले क्या था, स्क्वायर था, अब ये ट्रायंगल हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं ये होगा। ये इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। ये पेरीमीटर भी क्या होगा, पेरीमीटर आप देखेंगे तो ये चेंज हो भी सकता है, चेंज होगा या नहीं होगा। आप ये खुद करके आप देख सकते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं होगा। ज़रा मैं करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ क्या चेंज होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जब इसको समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे देखिए कि ये मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूँ। मैं आपके सामने पहले एक स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने ये स्क्वायर बना दिया। अब ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल सही नहीं बना, इस कारण मैंने चेंज कर दिया। बच्चों तुम बिल्कुल सही बनाना तुम लोग। ठीक है, अब मान के चलते हैं क्या, इट विल बी द 8 सेंटीमीटर, इट विल बी द 8 सेंटीमीटर, इट विल बी द 8 सेंटीमीटर, इट विल बी द 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या क्या इसको उठा करके हम इधर रखेंगे। ठीक है, 8 मीन्स ये कि ऐसा हो गया। फिर क्या होगा, ये यानी ये जो डायगोनल है, अब ये 8 8, ठीक है। अब ये होगा तो इसका कितना लेंथ होगा, या फिर थोड़ा सा हमने आपके लिए डिफ़िकल्ट ले लिया, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ आपको, है ना। मैं आपको इजी कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको इसीलिए इजी करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो बच्चों, मैंने कहा था कि अगर ये स्क्वायर का ये है, हर एक साइड, ईच साइड विल बी 8 सेंटीमीटर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने बताया था। तो ये अगर बाय द वे मान लिया जाए ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ जो होता है वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आया। तो मान के चलिए आप 11 है, सही 11 मान के चलिए। तो अगर हम 11 मान के चलते हैं इसको, तो क्या होगा, अब आप इसका देखिए पेरीमीटर इसका निकले, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो गया, ये हो गया 32। ये कितना हो गया, ये आपका 32 हो गया। अब आ जाइए इस पे, अब इसका पेरीमीटर कितना है, ये आपने कहा ये 11, ये भी 11, ये कितना था, ये था 8, ये 8। अब जोड़िए 8 8 16, 1 11 11 22, 6 2 8 38। आपने क्या देखा कि हाँ पेरीमीटर बिल्कुल बदल जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा, बदल जाएगा। द पेरीमीटर विल बी डिफरेंट इन द केस ऑफ इन द डिफरेंट सेट। ओके, क्यों ऐसा होता है, हमने देख लिया कि 8 8 16 हो गया प्लस वो 11। नाउ यू अंडरस्टूड दैट the perimeter will be different in different sets. Okay, so now come to the chapter.
हाउ बिग इज़ माई हैंड, आप तो इसमें आप देखेंगे कि आपका हाथ कितना बड़ा है, तो इसमें से आपको ये पता चलेगा कि कितना हाथ आपका बड़ा है. दिस देयर इज़ द स्क्वायर ग्रिड गिवन हेयर. नाउ यू हैव टू put your hand and you have to design your and you have to give the outline outline of your hand. Then you can measure the area of your hand. ये कर सकते हैं आप, इसका मेजर कर सकते हैं. तो आप देखिए किसका है, आप अपने दोस्तों के साथ इसी काम कर सकते हैं, है ना. आप देखिए इनके जो फुटप्रिंट्स हैं, किनका ज़्यादा हो सकता है, किनका कम होगा. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ये सब करना है. ये मज़ेदार चीज़ें हैं, करने में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये. आप इसमें ये जो एरिया दिया हुआ है इसका भी आप कर सकते हैं आसानी से. ट्राई ट्राइंगल्स, बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया. क्या सेम एरिया है, तो आप इसको स्क्वायर में करके देख सकते हैं. तो आप इसको आसानी से करेंगे, कंप्लीट कीजिए इस शेप को. और ये काइट का शेप दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या करते हैं लोग. rectangle of area 20 square centimeter. Draw one straight line in this rectangle to divide into equal triangles. तो मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, और ये मैंने बताया ही था, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ये वगैरह मैंने बताया भी. पेरीमीटर क्या होता है ये भी मैंने बताया, और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप कर लेंगे. और ये सारे पैटर्न जो हैं वो स्क्वायर से ही संबंधित हैं, आप स्क्वायर से रिलेटेड हैं. आप ये सारी चीज़ें करनी है. आप देखिए इसमें स्क्वायर्स किस तरीके से हैं, है ना. आप इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं कि कुछ मिरर इमेज टाइप का भी कुछ दिखता है, मिरर इमेज का भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसमें. तो ये सब चीज़ें हैं, है ना. आप देखिए आपको यहाँ पे अभी सम वगैरह भी दिया जाता है, बनाने के लिए, करने के लिए दिया जाता है, तो आप कुछ कर सकते हैं. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्क्वायर से संबंधित कुछ चीज़ मैं आपको और मैं यहाँ बताता हूँ कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या होता है. स्क्वायर ऑफ नंबर्स भी होते हैं इसमें, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ. स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ओके. सो अब देखिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर्स. स्क्वायर ऑफ नंबर्स होता है क्या है, एक जो नंबर है, मान लीजिए ये 4 है, हमने 4 को लिया. आप 4 को इफ़ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स. इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा. तो हम आपको दिखाते हैं कि 1 to 20 आपको यहाँ पर हम शो करते हैं कि किसका कितना स्क्वायर होता है. तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर इस तरीके से बना भी सकते हैं. मैं आपको दिखा रहा हूँ. 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1. 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4. 3 का 9. 4 का 16. 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, इस तरीके से 7 का 49, और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 124, 13 का 169, 14 का 96, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289. ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसे ही. अब दूसरा देखिए, 18 का होता है 18 का होता है 324, 19 into 19
होता है 361, 20 इंटू 20 होता है 40। अब कहेंगे 19 इंटू 19 361 होता है, तो करके देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 88, यहाँ 8 आया, 171 और 19 देखिए 163 आया। अब 14 इंटू 14 कीजिए, 56, 14, 6, 9, 196। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि ये सारे स्क्वायर नंबर से होते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है कि है ना, एक ये हमने स्क्वायर बना दिया, देखिए इधर दूसरा स्क्वायर क्या होता है, हमें मान लिया जाए हम निकाल रहे हैं 14 का, 1 4 1 4, 1 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। आप सबका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम करना है। Dear children, finally I am going to put all the details related with the area and perimeter of rectangle. So you should listen here carefully. How will you find the area and perimeter of a square and a rectangle? So see here, आप देखिए कैसे कैसे हम करेंगे। सपोज ये देखिए आपके सामने एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का होता क्या है कि मैंने देखा क्या था कि आप लोगों ने देखा क्या कि कैसे हम इसको कर रहे थे। हमने क्या किया कि हर एक पार्ट को मैंने 1 स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर में हमने बांट दिया। अब हमने क्या, अब हम यहाँ क्या देखते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ओके, then it will be the 1 centimeter square. Then see here how many centimeters are, how many squares are there. 1 2 3 4, and this is 1 2 3 4. Then you have to multiply, okay, how many, 4 from here to and from here to there, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ से यहाँ कितना है 4 है। देन एरिया क्या होगा, area will be 4 into 4. Then it means that side into side, okay, side into side, one side and one side, side into side, side means क्या, ये इसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ साइड will be the area of the square. Then so all the sides are equal to each other in a square. So if the length of the one side is given, then you can find out the area of that square. आप आसानी से इसका पता कर सकते हैं। And what will be the perimeter? Perimeter all the boundaries of this shape. Then what is the length of each boundary? Each is 4, okay, 4 plus 4 plus 4 plus 4, okay, then it means 16. So what do you mean? It means that if one side is multiplied by 4, then you will get the sum of all length, sum of the sides, the sum of the length of the sides, okay. So it will be 4 into side. Now see here for the rectangle. आप यहाँ rectangle के लिए अब देखिए, मैं rectangle के लिए बता रहा हूँ। rectangle ये rectangle है आपके सामने, ये rectangle है। You can also divide it into the squares. Then 1 1 1 1, okay. So how many? 1 2 3 4, okay.
this will be now not proper. So see here, this is the rectangle, all it is divided into the squares. Then how many squares? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6. Okay, what will be the area? area means यहाँ से यहाँ तक 1 to 6 centimeter, and this is the length, and this is the breadth. Breadth means 3. 16 3 is 18. It means that area means length into breadth. लेंथ को बोलते हैं लंबाई, ब्रेथ को बोलते हैं चौड़ाई। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया निकल जाएगा इसका। ठीक है, नाउ कम सी हियर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। what will be the length there? The length will be there is 6 and breadth is there 13. What will be the then the perimeter? Perimeter means the boundary of all sides. The boundary it means the length of all sides. Okay, so length means 6 plus 6, breadth plus breadth, y 6 6 12 3 15 3 18. It means that 6 6 is equal, why this 6 is equal, this is equal to this, and this is equal to this. If the length of this side will be 6, then it will be also 6. If the length of this side will be 3, then it will be also 3. So it means the perimeter of 2 into length plus breadth. Okay, so finally you got all the points from the how many squares are there, and I tried